Good afternoon, students. Hello, students. I am Subhash Chandra Vishwakarma, your computer teacher. Today, we are going to learn the first chapter to the computer, the introduction to the computer. But before started lesson, let me tell one thing: the computer will be make 100 pages full escape notebook, and all the exercise you will write both in notebook and textbook. Also this video you can see in the first slide. The cover page is of a computer book that is from Navneet Publications, so everybody will buy this book. So let us start first lesson: internet and email. Internet and email. The word internet is a combination of two words: interconnection and network. The internet is a network of thousands of computers across the world. In short, the internet is a network of computer networks. The internet is not owned by anybody, but there are various organizations that manage different parts of the network. तो बच्चों, आपको जैसा पता होगा कि इंटरनेट और ईमेल क्या चीज़ है। हर एक व्यक्ति, सब लोग जानते हो कि इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, ईमेल से क्या, ईमेल के फ़ायदे क्या हैं, ईमेल के यूजेस क्या हैं, ये सब यूजेज ऑफ द इंटरनेट के यूज। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल इज यूज टू सेंड मेल्स थ्रू द इंटरनेट. यूजिंग ईमेल यू कैन एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस, pictures, sound, etc. with other internet users across the world. In just a few seconds, you only need to have an email account, which is provided free of cost by most server. News groups are used to exchange views, ideas, news, and other information. An internet user कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो बच्चों, आपको इस तरह से यूजेस ऑफ द इंटरनेट, हम इंटरनेट का यूज कहाँ पे करते हैं। ईमेल के फ़ायदे क्या हैं? ईमेल से हम टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियोज, पिक्चर्स, इमेजेस सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एंड न्यूज ग्रुप मीन्स हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इस तरह से डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस, थर्ड नंबर का है ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। इंटरनेट यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कैन कम्युनिकेट लाइव विथ वन अनदर. देर आर स्पेशल सॉफ्टवेयर टू हैव ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ऑन द इंटरनेट. तो इस तरह से आपको इंटरनेट पर हर एक तरह के कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग, लाइव चैनल आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो। अदर यूजेस, और एक दूसरे भी यूजेस हैं इंटरनेट के। बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट पर हम जो एडवर्टाइज आता है, हम बुक्स यानी कोई भी मटेरियल सेल कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। मैनेजिंग बैंक अकाउंट्स, स्टडिंग अ सब्जेक्ट ऑफ वन चॉइस एंड ऑब्टेनिंग अ डिग्री, रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एक्सेट्रा, watching movies, playing games and listening to music, ordering books, is sending greeting cards. Internet terminology. What is the network? It is a group of computers which are connected to each other for communicating and sharing resources. There are two kinds of network: local area network LAN. It connects computers within one building. Computers in LAN are usually connected with cables. LAN क्या होता है? जो केबल से हम अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट पेज, वाइड एरिया नेटवर्क WAN. It connects computers over long distances. Computer in WAN are usually connected by telephone lines or broadband. The internet WAN. हम WAN के जरिए जो है अपने नेटवर्क, हम अपने फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में वाईफाई के जरिए अपने कनेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट. Search engine. It is a site on the internet with the help of which a user can search for other websites.
A user can search the web on the basis of the keywords he gives. Google is one of the most popular search engine. जैसा कि आपको पता है, कुछ भी हमें सर्च करना होता है, कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना होता है, तो हम अलग अलग सर्च इंजन में, वेब ब्राउज़र में जाते हैं, जैसे गूगल क्रोम, याहू, मोजिला, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, सब में. गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ऑल मॉडर्न computers and laptop are capable of connecting to the internet. To get connected to the internet you need, जैसे आपको ज़रूरत होता है कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप सबको बताना चाहिए. फर्स्ट नंबर, a computer running Windows, an account with an internet service provider ISP, an account with an internet service provider ISP. Your ISP is a link between your computer and the internet. ISP means आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच का लिंक होता है. सो देयर आर 3 ways of getting connected to the internet. Modem. You can connect to the internet using a modem. A modem is an electronic device that connects your PC to a telephone line to enable you to use the internet. This is known as dial-up connections. Though it is cheap, it is very slow. Broadband connection. What is the broadband connection? The most popular way is to have your telephone line, also known as a landline, converted to broadband so that you can use the telephone for calls and for the internet at the same time. हम एक ही समय में इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं और टेलीफोन का भी यूज कर सकते हैं फ्रॉम द ब्रॉडबैंड कनेक्शन से. मोबाइल इंटरनेट तो आप सबको पता ही होगा, आप लोग यूज भी कर रहे हैं. हम कहीं भी जा कर के इंटरनेट यूज कर सकते हैं. डिफरेंट इंटरनेट प्रोवाइडर्स का भी यूज कर सकते हैं. If you don't have a landline or if you want to use the internet when you are out, you can use mobile internet from any mobile network provider. This can be used anywhere where there is a mobile signal, but it can be slower and more expensive than broadband through a landline. You can also get connected to the internet using a direct or dedicated connection. You do not need an individual modem for your computer, and you need not dial to connect to the internet. To the computer is always connected to the internet. This method is expensive and is so only large organization use it. जैसा कि आपको इसके स्पीड, मॉडम स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए PBS में बाइट्स पर सेकंड होता है और KBS किलो बाइट्स पर सेकंड होता है. 1 kbps बराबर 1000 bps. तो लेट अस स्टार्ट मूव ऑन नेक्स्ट पेज. वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. World Wide Web or WWW is a collection of all the websites on the internet. All these websites are linked to one another to form a global World Wide Web of internet information. अब इसमें आपको सबको पता होना चाहिए वेब ब्राउज़र क्या है, वेब सर्वर क्या होता है, वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज, हाइपरलिंक, URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, HTML. ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब में आता है. वेब ब्राउज़र a program for getting connected to WWW and viewing and information on it. Microsoft Internet Explorer is a web browser. जो आपके PC में इस मॉनिटर के स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो उसे हम क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है. ओके फाइन, लिसन. सेकेंड नंबर, वेब सर्वर, a program or a computer that stores all websites. Website, a collection of web pages linked to one another. Web page, a single pages of information, text, images, sound, videos, clips on the website. Home page, the first page of a website. Hyperlink, a web address on the web pages. It is shortcut to another web page. It could be an image, pictures or text, hypertext. URL, universal resource locator.
इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। यह जो है एड्रेस बार का एक का इंटरनेट लोकेटर है, URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। So what is the HTML? Hypertext Markup Language. It is the standard coding language used for creating web page. ये जो है वेब पेज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि यह एक स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज होता है HTML. It is a set of markup codes or symbols that tells the browser how to display to web page. यहाँ पे मार्कअप दिया जाता है, लोगो दिया जाता है कि आपका वेब पेज कैसे खुलेगा, किस तरह से इसमें हम यूज करते हैं, सेटिंग करते हैं। इच मार्कअप कोड इज कॉल्ड एन एलिमेंट और अ टैग। जो मार्कअप होता है, कोड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट और टैग कहते हैं। URL। सो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा है व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। URL is the address of a website on the internet. For examples, in URL of Navneet Education Limited, it's मतलब URL मीन्स जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं अपने स्कूल के नेम, अपने स्कूल में सर्च करना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं। नवनीत बुक्स हमें फाइंड आउट करना है, उसके क्वालिटीज़ क्या है, उसमें फीचर्स क्या है, ये सब हमें सर्च करने के लिए ये एक एड्रेस बार होता है, URL होता है। जिसमें कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, कॉलन होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है, WW वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, और नवनीत होस्ट डोमेन नेम होता है और उसका टाइप होता है। टाइप क्या होता है, .com, टाइप .com, org, in, au, go जो भी है। तो प्रोटोकॉल, इसमें प्रोटोकॉल है, वेब है, होस्ट है। प्रोटोकॉल मोस्ट वेब एड्रेसेस बिगिन विथ HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल सेंड्स वेब पेजेस फ्रॉम द वेब सर्वर्स टू योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में से एक दूसरे के पास सेंड करता है। द लेटर्स HTTP आर ऑलवेज फॉलोड बाई अ कॉलन एंड 2 फॉरवर्ड स्लैश। ओके फाइन, ऑल ऑफ यू लिसन एंड अंडरस्टैंड. If any doubts, send me text messages in my WhatsApp number. Okay, fine. बच्चों, आपको समझ में आ रहा है जिस तरह से वेब होस्ट, वेब क्या है, वेब मोस्ट वेब एड्रेसेस हैव www डॉट आफ्टर HTTP. वेब क्या है, www. ओके फाइन. होस्ट, दिस इज द नेम ऑफ द वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम होता है। ऑर्बिट, जैसे एग्जाम्पल ऑर्बिट स्मार्ट स्कूल, नवनीत। This name could be the name of a company. This name could be name of company, business house, न्यूज एजेंसी। न्यूज एजेंसी जैसे अपना संदेश न्यूज़पेपर है, गुजरात न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं, एक्स्ट्रा। इन दिस एग्जाम्पल नवनीत इज द नेम ऑफ द होस्ट। तो मूव ऑन नेक्स्ट पेज। जैसा कि मैं आशा करता हूँ आपको पेज नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th आपको समझ में आ गया है और मैंने अपना इंट्रोड्यूस भी दे दिया है। उसमें से आपको 100 पेजेस के नोटबुक भी बनानी है, जिसमें कि एक्सरसाइज भी नोटबुक और टेक्स्ट बुक बोथ में राइट करना है। ओके फाइन. 4th नंबर, टाइप ऑफ साइट. दिस पार्ट ऑफ द वेबसाइट tells you what type of site a website is. .com stands for commercial site. This means that Navneet is a commercial site. Okay, the host and the type of the site are together called domain name. In this case, the domain name is a navneet.com. टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स. अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स दिए गए हैं कि उनके डोमेन नेम्स क्या क्या हैं. डोमेन नेम्स आर बेस्ड either on the type of organization or the geographical area, country. geographical area means जो country होता है, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, जापान, पाकिस्तान, कनाडा, इनके सब अलग अलग जो है डोमेन नेम्स होते हैं. फाइन, ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है. ओके,
In India, AU, Australia, US, United States, UK, United Kingdom, CN.CN, China.jp, Japan.pk, Pakistan.ca, Canada. ओके फाइन, ये जियोग्राफिकल डोमेन नेम्स है, मतलब कंट्री वाइज डोमेन नेम्स हैं. फाइन. वर्किंग ऑफ द www. A web browser is used to send a request for information to the web server. The web server receives the request and sends the information back to the web browser. In short, a web server stores all the information and the web browser displays the requested information to the user. Since we are using Windows operating system, Microsoft Internet Explorer will be our web browser. So बच्चों, आपको पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में से आपको लर्न करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड समझना है. अगर कोई भी डाउट्स होता है, नहीं समझ में आता है, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना. और हम नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.